So hello guys, welcome to Alpha once again, and I'm your favorite mentor. So we are having with us a very special guest, Alpha's very own Ria, and one of my personal favorite, not only from batch 2025, from my whole career. She is a student who was very much connected with me throughout her journey, and I was very much connected with her. So I have seen all the ups and downs, all the problems she were facing throughout the journey, all the mistakes she has done, and how she rectified, how she fights back again. So everything. So how it feels when you saw the result after the 2 year of hard work, 2 year of dedication, 2 year of journey, 2 year of ups and downs, 2 year of lots of sacrifices. See, as sir said, like 2 years of hard work, it's very important कि हम ये 2 साल जो है 11 and 12, जो मेरे 11 में जो मैंने कुछ गलती की है वो मैंने 12 में फिर से फाइट बैक किया है. जब जाने के वक्त डाउन का फेज आता था, उसी से कैसे फाइट बैक करना होता है. कभी भी डीमोटिवेट मत हो. लाइक मेरा नहीं हो रहा है, दूसरों का हो रहा है, दूसरों को 600 मिल रहा है, 700 मिल रहा है, 500 मिल रहा है, मुझे सिर्फ 300 मिल रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब कभी मत सोचो. सिर्फ सोचो ठीक है, आज मेरा नंबर कम आया है, कल और भी ज्यादा आएगा. वो जो टॉपिक तुमको नहीं आ रहा है वो हमेशा रिवाइज करो. बट कीप इन माइंड कि मैं 11th का सिलेबस 11th में कंप्लीट करूंगा या करूंगी. मेरी स्ट्रेटेजी थी. Please give a round of applause for our NEET 2025 and JEE 2025 topper Ria. So hello guys, welcome to Alpha once again, and I'm your favorite mentor. So we are having with us a very special guest, and she is Alpha's very own Ria, and one of my personal favorite, not only from batch 2025, from my whole career till now. So she is a student who was very much connected with me throughout her journey, and I was very much connected with her. So I have seen all the ups and downs, all the problems she were facing throughout the journey, all the mistakes she has done, and how she rectified, how she fights back again. So everything. So today हम लोग क्या करेंगे, रिया से अपने जर्नी के बारे में पूछेंगे कुछ कुछ सवाल, जिससे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो और जो तुम्हारे जर्नी में बहुत सारा वैल्यू ऐड करेगा कि फाइट बैक कैसे करते हैं, अगर कुछ मोमेंट पे लो हो जाए तो उसी से कैसे कम बैक करना होता है, डेली शेड्यूल कैसा होना चाहिए, मॉक टेस्ट का फ्रीक्वेंसी कैसा होना चाहिए, एक साथ सारे सब्जेक्ट को बैलेंस कैसे करें. एवरीथिंग वी विल डिस्कस, एंड रिया विल आंसर एवरीथिंग, every sort of question very honestly, because she is tremendous in answering all the thing, and not only she is just a good student, she is a mixture of everything, so perfect balance of everything. So अगर तुम लोगों के पास भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, you can ask her directly, because not only in NEET 2025 she has secured a very much good percentile as well as in JEE 2025. So she is one of the few students from the state who has secured a very good percentile in both PCB as well as in PCM. So she has given a top-notch result in NEET 2025 as well as in JEE 2025. So ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि एक साथ तुम PCM और PCB दोनों सेक्शन पे अच्छा करो और एक साथ तुम दो चीज़ों को साथ पे बैलेंस लेके चलो एंड तक, और दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे, जो कि नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, स्टेट लेवल का भी नहीं, और दोनों पे तुम अच्छा करके आ जाओ और दोनों पे रिजल्ट लेके आ जाओ. ऐसे बहुत कम स्टूडेंट है 2025 बैच से, और हर बैच से ये बहुत कम स्टूडेंट ही होते हैं, तो उनमें से रिया एक है. सो यू आर गेटिंग डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी टू आस्क योर क्वेरी, योर क्वेश्चंस, योर प्रॉब्लम फ्रॉम हर, एंड everything you can ask her and she will answer the thing. Okay, so Ria, the first question is to you. I know, but everyone should know. Yes. So how it feels when you saw the result after the 2 year of
hard work, 2 year of dedication, 2 year of journey, 2 year of ups and downs, 2 year of lots of sacrifices, you are getting this much. And सारे जो मेहनत है वो उद्दित हो गया. So पहला रिएक्शन कैसा था? How actually it feels like? See, as sir said, like 2 years of hard work, it's very important कि हम ये 2 साल जो है 11 and 12 वो हम सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें. एंड फॉर मी आई वुड से कि मेरी 11 थोड़ा सा ढीला गया है फॉर मी पर्सनली, बट 12 आई हैव वर्कड हार्ड. जो मेरे 11 में जो मैंने कुछ गलती की है वो मैंने 12 में फिर से फाइट बैक किया है. वो मेरी स्ट्रेटेजी थी. बट आई वुड से कि आप लोग अभी 11th में हो, राइट? सो 11 से आप ऐसे पढ़ाई करो ताकि 12 में आपको जाके ऐसा ना हो कि ओके मेरी 11th में ये चैप्टर छूट गए, मेरी 11th में वो चैप्टर अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ है, या जब हमने टेस्ट दिया है उस पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक में कम मार्क्स आए. सो उस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लो. 11th में आप अच्छे से 11th के सिलेबस कंप्लीट कर लो, मैं वही बोलूँगी. एंड अभी जब रिजल्ट आया है तब लाइक इट फील्स लाइक ओके नाउ आई एम गोइंग टू बी अ डॉक्टर. मेरे सपनों का लाइक फुलफिल हुआ है वही. लाइक इट फील्स वेरी गुड. मतलब Which खुद cannot be से expressed yes in yes words yes actually. It's just a feeling. जब तुम उस चीज के अंदर होते हो तभी तुम्हें पता चलता है ये फीलिंग कितना ब्यूटीफुल है. ये एक्चुअली कोई भी वर्ड इसको बयां नहीं कर पाता हाउ इट एक्चुअली फील्स. आई नो. सो मैंने तुम्हारा जो जर्नी है पूरा जर्नी क्लास 11 के डे 1 से 12 के लास्ट डे तक बहुत करीब से देखा है. बहुत अप डाउन्स थे, बहुत प्रॉब्लम्स थे, उसी से तुमने फाइट बैक किया. कुछ कुछ वक्त तुम बहुत डाउन फील करती थी, कुछ कुछ वक्त बहुत अप भी फील करती थी. और अप डाउन के बीच पे बैलेंस फील करना बहुत ज़रूरी है, जो मैक्स ऑफ द टाइम तुमने किया और उसी का रिजल्ट आज हम लोग देख रहे हैं. तो जब जर्नी के वक्त डाउन का फेज आता था उसी से कैसे फाइट बैक करना होता है, क्योंकि ये लोग जस्ट 11 पे आए हैं और आई एम श्योर जब ये सेशन जाएगा तब 12 के भी बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे. तो 12 के ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन लोगों का अभी डाउन फेज चल रहा है, जो लोग डाउन फील कर रहे हैं और वो लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं कैसे फाइट बैक करना है. और इनमें से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो शुरू से ही डाउन फील कर रहे हैं. इन लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा तो नहीं हूँ, मेरा शायद नहीं होगा, दूसरों का हो जाएगा. तो उसी मतलब हर एक स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है. जो लोग टॉपर होते हैं उन लोगों के साथ भी ऐसा होता है. मैं जब एस्पिरेंट था मेरे साथ भी ऐसा होते थे. तुम जब एस्पिरेंट अभी थी तुम्हारे साथ भी बहुत बार ऐसा होते थे. तुम मुझे आके बोलती थी, मतलब 2-3 हफ्ता बाद ही तुम ऐसे बोलती थी कि सर ऐसा नहीं हो रहा है, ये सब्जेक्ट नहीं हो रहा है, ये टॉपिक नहीं हो रहा है. तो उसी से कैसे फाइट बैक करना होता है? सो मैं वही बोलूंगी कभी भी डीमोटिवेट मत हो. लाइक मेरा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, दूसरों का हो रहा है, दूसरों को 600 मिल रहा है, 700 मिल रहा है, 500 मिल रहा है, मुझे सिर्फ 300 मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब कभी मत सोचो. सिर्फ सोचो ठीक है आज मेरा नंबर कम आया है, कल और भी ज्यादा आएगा, आई कैन डू इट. कैसे करोगे? सिर्फ वही खुद पे ट्रस्ट करो, हर दिन पढ़ो. वो जो टॉपिक तुमको नहीं आ रहा है वो हमेशा रिवाइज करो. एक बार नहीं हो रहा है, 2 बार नहीं हो रहा है, 3 बार नहीं हो रहा है, कब तक नहीं होएगा? करते रहो, हो जाएगा. वही मेरी स्ट्रेटेजी थी. क्योंकि 11th में एज आई सेड कि मेरे कुछ पर्टिकुलर ऐसे चैप्टर्स थे, टॉपिक्स थे. मैं तो बोलूँगी मेरे पूरे फिजिक्स ही नहीं हुआ था भाई. वो 12th में मैंने पूरा कंप्लीट किया है. लाइक लास्ट के 2 महीने में अगर आप मुझे देखते होंगे तो मैं हर दिन फिजिक्स ही पढ़ती थी. पापा बोलते थे कुछ तो पढ़ ले फिजिक्स के बिना, कुछ तो पढ़ ले, फिजिक्स ही पढ़ रहा है तो. ऐसे मैं बोलती थी नहीं, मेरे जो बाकी 2 सब्जेक्ट्स है वो हो चुका है. लाइक मुझे लग रहा है कि हो चुका है, मेरे फिजिक्स नहीं हो रहा है तो मैं वही सब्जेक्ट रिवाइज करूंगी. सो आपको भी 11th में वही करना पड़ेगा. जो भी सब्जेक्ट हो, आपको फिजिक्स टफ लगता है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री टफ लगता है तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो बायोलॉजी. सब तो सेम नहीं होता है, हम डिफरेंट होते हैं ना. तो वही तो एक टॉपिक नहीं हो रहा है, रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो. बट कीप इन माइंड कि मैं 11th का सिलेबस 11th में ही कंप्लीट करूंगा या करूंगी. आप ऐसा मत सोचो मैं तो 11th में हूँ, 12 में जाऊंगा तो अच्छा मार्क्स हो जाएगा, कर लूंगा, ऐसा नहीं.
11th में हो, 11th ही कंप्लीट करो। क्योंकि मैं बार बार ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद के जाने से मैं ये सीख रही हूँ कि 11th नहीं हुआ है तो 12th में आपको बहुत सफर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं 11th का कुछ टॉपिक्स 12th में नहीं लगेगा, लगेगा, ऐसा नहीं है, लगेगा, मैं बोल रही हूँ वही। ट्रू ट्रू ट्रू, लाइक शी इज सेइंग, अगर तुम्हें कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे प्रॉब्लम हो रखी है या फिर हो रहा है, सो वो पहले क्लियर कर लो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम तुम्हारे पास है। दो केमिस्ट्री का तो प्रॉब्लम कुछ किसी को नहीं होगा, केमिस्ट्री का कुछ प्रॉब्लम होने का कोई चांसेस बहुत कम है क्योंकि यू आर इन अल्फा, तो पर बाकी दो सब्जेक्ट का अगर कुछ प्रॉब्लम हो रखा है तो उसको जल्दी से क्लियर कर दो। अगर होता भी है, मैं बोलूंगी कि आपको आज हो रहा है कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम, तो आप सर को इमीडिएटली बताओ कि सर मुझे ये पार्ट नहीं हो रहा है। मैं तो सर को हमेशा बोलती थी सर मुझे ये पार्ट नहीं समझ में आ रहा है। और मैं जब घर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, मुझे सपोज मैंने 15 क्वेश्चन किए, मुझे 10 ही मेरे से नहीं हुआ है, तो मैं सर को लेकर बोलती थी सर मुझे ये सब नहीं आता है, आप मुझे फिर से क्लियर कर दो। सो जो प्रॉब्लम आपको होता है, आप जिसे भी टीचर रेस्पेक्टिव टीचर से पढ़ते हो, केमिस्ट्री आप यहाँ पर पढ़ते हो, सर को मैम को इमीडिएटली बताओ कि सर मुझे इस जगह पर प्रॉब्लम हो रखा है, क्योंकि दे आर द मेंटर्स, दे विल गाइड यू, राइट। सो आपको उन लोगों को बताना है हमेशा। And that's the importance of having a very good bonding with your respective mentors. यस, And रिया का केस में जो था, उसका फिजिक्स का जो बॉन्डिंग था या फिर फिजिक्स का जो मेंटरशिप था वो 2 साल में फिक्स नहीं हो पाया था, इसीलिए रिया ने फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। और ये मुझे हमेशा आके बोलती थी कि सर फिजिक्स नहीं हो रहा है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखा है, फिजिक्स का ये चैप्टर बैकलॉग हो रखा है, फिजिक्स कैसे कवर करूँ, क्वेश्चन लेता हूँ तो सॉल्व नहीं होता। और ये जो चीज़ है वो रिया के रिजल्ट पे भी रिफ्लेक्ट हुआ है। इसका बायोलॉजी का मार्क्स बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री का मार्क्स भी अच्छा है, पर फिजिक्स का मार्क्स कंपैरेटिवली कम है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली अच्छा हो जाता तो ये जो रैंक है इस पे 1 डिजिट और कम आता, और 1 डिजिट कम आता, और इससे जो रिजल्ट अभी रिया ने किया है उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाता, राइट। और जो कॉलेज अभी रिया को मिल रहा है उससे भी बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता अगर फिजिक्स का ठीक ठाक हो जाता। तो इसीलिए हैविंग अ वेरी गुड बॉन्डिंग विथ योर रेस्पेक्टिव मेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली विथ मी, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द 3 सब्जेक्ट। तुम अगर अपने मेंटर को प्रॉब्लम नहीं बता पा रहे हो, मतलब कुछ इश्यूज हो रहा है वो नहीं बोल पा रहे हो, तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ गोइंग देयर, इजंट इट? यस, इट्स मतलब बहुत ही जरूरत है आप आपके मेंटर से सब कुछ शेयर करें। मैं तो मेरी पर्सनल लाइफ भी सर के साथ शेयर करती थी, सर पता है आज ये हुआ, बट यू नीड समवन, राइट, कि आपको गाइड करे थ्रू द जर्नी। जैसे मेरी बड़ी बहन रह चुकी है, बट वो अपने काम के लिए दूसरे शहर में रहती है। सो मेरे पास, मुझे तो, मैं सर को हमेशा बड़े भैया के जैसे मानती थी कि ठीक है, आई हैव समवन कि मैं जिसको बता सकती हूँ कि मुझे ये जगह पर प्रॉब्लम हुआ है। तो वही आपको अपने मेंटर्स के साथ शेयर करना है कि आपको कौन सी जगह पर प्रॉब्लम हो रखी है, क्योंकि सर को तो नहीं पता होगा ना कि आपको कौन सी जगह पर प्रॉब्लम होगी, तो आपको शेयर करना पड़ेगा। दैट्स द थिंग। True, true. And yeah, you are very good in biology from the very first. So your marks also reflecting that you are one of the few students who has secured 300 plus in Yes. biology in NEET 2025, despite of having this much tough paper. So biology के लिए क्या करना पड़ेगा, जिन लोगों का बायोलॉजी मेन है, और 11 पे बहुत सारे स्टूडेंटों का बहुत कुछ गलतियाँ होती रहती है जो 12 पे जाने के बाद पता चलता है, और उसको रेक्टिफाई करने के लिए और ज़्यादा वक्त चला जाता है। तो वो प्रॉब्लम ना ही हो और 11 के पहले से ही सब कुछ स्मूथ जाए, तो क्या करना चाहिए बायोलॉजी? दो पेपर अगर 2025 की तरह लिंक दे या फिर टफ भी आ जाए, फिर भी 300 प्लस, 310 प्लस, 320 प्लस आ जाए। ओके, मैं ये बताऊंगी, फॉर बायोलॉजी आप तो एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, किसी भी एक लाइन भी छूटनी नहीं चाहिए। हमारे पता है हमारे इस एग्जाम पे जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है ना बायोलॉजी का फर्स्ट, वो इंट्रोडक्शन पार्ट से हमको क्वेश्चन दिया गया है। सो बहुत सारे लोग वो इंट्रोडक्शन पार्ट स्किप कर देते हैं, क्या क्या रखा है भाई, पर इंट्रोडक्शन पार्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जो भी हो, वहां पर साइंटिस्ट के नेम्स होते हैं, बहुत कुछ होता है वो पर्टिकुलर यूनिट पे। सो आपको वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, बीट इंट्रोडक्शन, एकदम छोटे छोटे लाइन। आप हाइलाइटर्स यूज करिए, ठीक है, हाइलाइटर्स यूज करके आपको जो
डिफिकल्ट लगता है, जो सबको तो सेम चीज डिफिकल्ट नहीं लगेगा, सबका डिफरेंट होगा ना, तो आप वो जो भी पार्ट डिफिकल्ट लगता है उस पार्ट पे आप हाईलाइट कीजिए कि मुझे ये पार्ट डिफिकल्ट लग रहा है, वो पार्ट दोबारा रिवाइज करिए। दिस विल बी माय सजेशन। उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। कॉन्सेप्ट इज द मेन थिंग। आप तो रट लोगे, रटना सबको आता है, राइट। कंसेप्ट को क्लियर करो। इस बार जो पेपर आया है हमारा वो कॉन्सेप्चुअल बेस था, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज हुए, तो कॉन्सेप्ट भी आप ध्यान रखो। साथ ही साथ बायोलॉजी है भाई, मैं तो बोलूंगी रटना पड़ेगा ही, आप कुछ नहीं कर सकते हो। हॉर्मोन्स होते हैं, बोन्स के नाम होते हैं, आप क्या करोगे, उसको तो रटना पड़ेगा, वो तो आप खुद के दिमाग से नहीं ला सकते हो। रटो पर समझ के रटो, ऐसा नहीं कि ठीक है मैं रट लूंगी या रट लूंगा, समझ के रटना पड़ेगा। दैट्स द थिंग। ट्रू ट्रू। एंड केमिस्ट्री का मुझे पता है तुम कैसे करती थी, और ये ना मेरे साथ बहुत कनेक्टेड थी, इसलिए मैंने बोला कि इसका जो रिजल्ट है, रिया का जो रिजल्ट है वो मेरे लिए बहुत पर्सनल था। सो लाइक शी सेड, आई वाज नॉट जस्ट ए टीचर फॉर हर, एंड शी वाज नॉट जस्ट ए स्टूडेंट फॉर मी, तो इट वाज बियॉन्ड दैट। कुछ कुछ स्टूडेंट होते हैं ना, अपने जर्नी के वक्त ऐसे जुड़ जाते हैं कि वो स्टूडेंट नहीं रहते, फैमिली हो जाते हैं, एंड रिया वाज वन ऑफ देम। So I remembered back to 2024. She was so much excited about the Teachers Day of Alpha. She was she was the coordinator of everything, and suddenly one of my relatives has died, and everything got cancelled. And ये ना बहुत रिहर्सल वगैरह भी कर रही थी गाना वाना को लेके। So We were like पूरा रेडी है, गाना डांस सब कुछ। हम तो लाइक स्कूल के छुट्टी में जब मैं शिशु विहार में थी, तो लाइक 3 बजे 4 बजे जब भी हमारा छुट्टी होता था या देर से जाते थे, मैं सर के यहाँ पर आके चल आजा आजा डांस प्रैक्टिस करूंगी, ये सब करके पूरा डांस गाना सब कुछ रेडी। और मैंने जब होटल वगैरह बुक किया टीचर्स डे सेलिब्रेशन के लिए, उसी वक्त मेरा एक रिलेटिव गुजर गया था, तो पूरा सब कुछ कैंसिल हो गया। सो केमिस्ट्री का जर्नी तो मुझे पता है, पर आई वांट कि दे शुड ऑल्सो नो कि केमिस्ट्री तुमने बहुत स्ट्रॉन्ग कैसे किया, और शुरू से किस तरीके से कवर किया, और क्या क्या करना पड़ता है केमिस्ट्री को अच्छे से ग्रिप पे लाने के लिए। और अगर मैं चाहता हूँ कि इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक तीनों चीज़ें में मेरा बहुत अच्छा कमांड रहे, तो पहले से ही मुझे किस किस टाइप की गलतियाँ अवॉइड करना पड़ेगा, और क्या क्या मस्ट डू थिंग है जो मुझे पहले से ही फॉलो करना पड़ेगा। ओके तो केमिस्ट्री के लिए अभी मैं पर्टिकुलरली इस क्लासरूम में बताऊंगी। जैसे कि मैं वहां पर बैठी थी कुछ देर पहले, तो मैं देख रही थी लास्ट, मैं ऐसा नाम ले लूंगी, मैं देख रही थी कुछ स्टूडेंट्स लास्ट में बैठ के आप इतना भी कंसंट्रेशन नहीं दे रहे थे क्लास पे। द मेन थिंग इज यू शुड डू इज क्लास में सबसे पहले कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अगर आप क्लास में ये 2 घंटे आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते हो, तो आप घर में जाके कैसे आप इतने टाइम पढ़ सकते हो? इट्स नॉट पॉसिबल। सो हाउ यू बिल्ड अप इज क्लास में 2 घंटे में पूरा एकदम कॉन्सेंट्रेट करूंगी, किसी से बात नहीं करूंगी, आई हैव टू डू माई ओन थिंग्स। दिस इज द मेन थिंग आई शुड टेल। 2 घंटे आपको क्लास में पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जो है मैं बोलूंगी, अभी आप जस्ट 11th में हो, 3rd या 4th चैप्टर पे होगे, 3rd चैप्टर पे होगे, ठीक है, 3rd चैप्टर पे हो, तो अभी से आप थोड़े थोड़े करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, क्योंकि बाद में जाके आपको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन कर लो, बहुत सारा क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अभी से, आपको अगर 10 मिनट पे एक क्वेश्चन हो रहा है तो करो, बैठे रहो, क्योंकि सर बोलते थे हमको कि 5 क्वेश्चन आपको आधे घंटे लग रहे हैं, लगाओ, क्योंकि टाइम इज, आपको तो ये प्रोडक्टिविटी के पास जा रहा है, ऐसा नहीं कि आपका पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसे आप बैठे रहते एक टाइम आ जाएगा कि आपको आसानी से क्लिक हो जाएगा, क्वेश्चन दिखते, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन मैं ऐसे कर सकती हूँ। सो इस बेसिस पे। और फिजिकल केमिस्ट्री अगर आप बोलते हो, तो फिजिकल केमिस्ट्री पे आपको बहुत ज्यादा सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक पे हम थोड़ा सा रखते हैं, ऑर्गेनिक पे भी रखते हैं, बट इनऑर्गेनिक ज्यादा रखना पड़ता है, ठीक है। ऑर्गेनिक में तो बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि आपको अभी समझ नहीं आया होगा, हम 12th में पूरा ऑर्गेनिक, पूरा लास्ट 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर पूरा बहुत सारा चैप्टर्स है, तो ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्योंकि हम जब देखते थे ना, अरे ये रिएजेंट किधर से आ गया,
हमको तो पता ही नहीं है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि ठीक है ये रिएजेंट भी हो सकता है, ये रिएजेंट भी, हर कुछ आपके बुक में ऐसा लिखा नहीं होगा कि हम इस ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो सब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द मेन थिंग आई शुड टेल। Exactly. Like I always used to tell you guys in the classroom as well कि क्लास के वक्त बहुत कंसंट्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर उस वक्त तुम किसी के साथ बात करते हो या फिर मैं कुछ समझा रहा हूँ, मैं नहीं, कोई भी टीचर कुछ समझा रहा है और तुम्हारे दिमाग पे कुछ और कुछ चल रहा है या फिर तुम फालतू कोई चीज़ को लेकर डिस्कस कर रहे हो, तो यू आर ऑलरेडी गेटिंग आउट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। तुम कॉम्पिटिशन से ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हो या फिर हो रहे हो। सो वो चीज़ अवॉइड करना पड़ेगा। क्लास पे सब कुछ बहुत कॉन्सेंट्रेट वे पे सुनना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और घर में जाके वो चीज़ रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट। इफ यू आर नॉट डूइंग क्वेश्चन प्रैक्टिस इन दैट मच फ्रीक्वेंसी देन यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ बेस्ट रिजल्ट और बेस्ट आउटपुट इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक नीट और IIT JEE। और रिया ने जैसे बोला उसी अकॉर्डिंग मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस इन योर डेली शेड्यूल थ्रू दिस 2-year जर्नी। ओके, तो जैसे कि आप कुछ ही महीने हुएंगे, आप क्लास 11th पे हो, ज्यादा नहीं हुआ है, तो अभी से आप, मैं तो बोल ही रही हूँ अभी से स्टार्ट कर दो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फर्स्ट दिन आप 100 कर लो, ऐसे इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता है। आप आज 10 करो, अगले दिन 10 करो, अगले दिन, एक हफ्ते पे अगर आप 10-10 करके हर एक सब्जेक्ट्स के करोगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, तो आपको ऑटोमेटिकली 210 क्वेश्चंस आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस है, अगर आप ऐसे करोगे। she is talking about per week. यस, Per पर वीक आपको 210 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो फिर आप ऐसे ऐसे धीरे धीरे करोगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का फिर अमाउंट बढ़ाओ। आज मतलब इस पूरा महीना, अभी जून चल रहा है, ठीक है, सपोज आपने जून आज 20 जून है, तो आप पूरा जून कंप्लीट करो ऐसे। ठीक है, मैं 10 क्वेश्चन करूंगी इस महीने में, हर एक दिन 10-10 करके क्वेश्चन करूंगी। अगले महीने इसको 15 कर दो, अगले महीने 20 कर दो, धीरे धीरे बढ़ाते रहो। हाँ, धीरे धीरे बढ़ाते, डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिबिलिटी। हाँ, क्योंकि सब लोग नहीं कर सकते। कोई एक बोलेगा ठीक है मैं 10 कर रही हूँ तो मैं ये 3 महीने करूंगी, 4 महीने करूंगी। कोई एक बोलेगा नहीं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी। तो डिपेंडिंग कि आप कैसे कर सकते how much time you are having, how much productivity you are having, Yes. and how much revision time you are having. Exactly. And the next question will be on what is the importance of giving test, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं, इन लोगों में भी बहुत लोग ऐसे होंगे और 12 पे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जो लोग ना टेस्ट देने को लेके बहुत डर है इन लोगों के मन पे, क्योंकि अगर मैं टेस्ट दूंगा या फिर टेस्ट दूंगी तो मेरा मार्क्स कम आ जाएगा और मेरा जो सेल्फ मोटिवेशन है वो डाउन हो जाएगा। मुझे पता नहीं है कि एक किस तरीके का सेल्फ मोटिवेशन है और वो रख के भी क्या फ़ायदा होगा, पर फिर भी यू डिड अ वेरी गुड रिजल्ट इन NEET and JEE in 2025 despite of having this much tough paper. So what a better way to ask you कि टेस्ट देना कितना ज़रूरी है, कि पेपर अगर लेंथी आ जाए, टफ आ जाए, फिर भी अगर मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट देता हूँ, बहुत ज़्यादा मॉक देता हूँ, तो वो चीज़ मुझे कैसे प्रिपेयर करती है और वो चीज़ मेन एग्जाम पे कैसे हेल्प करता है। ओके, सो टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं बोलूंगी टेस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारे वक्त क्या होता था, सर एक चैप्टर पढ़ाते थे तो वो एक ही चैप्टर पे सर टेस्ट ले लेते, मतलब एक चैप्टर कंप्लीट हो उस पे टेस्ट दो, दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो उस पे टेस्ट दो। तो इस पे क्या होता है, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है, टेस्ट के बेसिस पे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है, क्योंकि आपको इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कि मैं रिवाइज करूँ चैप्टर। ठीक है, तो और सर का वो टेस्ट सीरीज आएगा जब आप 12th में जाओगे, अभी पता नहीं 11th में है उन लोग, 11th में भी है अभ्यास टेस्ट सीरीज जो है, अभ्यास टेस्ट सीरीज है सर के पास। सो आप वो टेस्ट, हर एक टेस्ट दो, कुछ नहीं होगा, आपको चैप्टर नहीं हो रहा है, क्योंकि हमेशा पॉसिबल नहीं कि आपके टीचर्स जो चैप्टर पढ़ा रहे डिफरेंट, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, वो भी सिलेबस में रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर नहीं भी हो, आपको केमिस्ट्री तो आता है ना, सर तो अपने ग्रुप में जो केमिस्ट्री चल रहा है वही देंगे, केमिस्ट्री पढ़ के जाओ, देखो कि केमिस्ट्री हुआ कि नहीं, जो चैप्टर्स हुआ है वही पढ़ के जाओ। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप रिवाइज कर सकते हो हर एक चीज। अगर आप ऐसे रखोगे, सी जैसे फर्स्ट महीने पे एक चैप्टर कंप्लीट हुआ और सर ने एक टेस्ट ले लिया, अभ्यास में जब आप जाओगे
टेस्ट देने में, वह तो चैप्टर फिर आएगा, रिपीट करेगा, राइट? तो वो चैप्टर अगर आप फिर दोगे तो आपको लगेगा ठीक है, मैं उस टेस्ट में वो गलती की थी, अब मुझे ये गलती फिर से दोहराना नहीं है। तो वो चीज आप खुद से फिर ठीक कर सकते हो। दिस इज द थिंग। और सर ने जो बोला कि टेस्ट नहीं दोगे क्योंकि डीमोटिवेट फील होता है, वैसा कुछ भी नहीं है। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, कभी भी डीमोटिवेट मत हो। नंबर कम आ रहा है, फिर से पढ़ो, फिर से ट्राई करो, एक ना एक दिन आपको नंबर मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड द मेन थिंग इज, आप जो टेस्ट दे रही हो 11th 12th में, जो 12th में भी दोगे 11th में भी दोगे, नंबर पे मैं तो बोलूंगी फोकस मत करो। फोकस करो आप कितना कर सकते हो, आपको नॉलेज कितना है उन चीजों का। नंबर तो आते जाते रहेंगे, वैसा नहीं है, पर मेन एग्जाम पे नंबर लाना ऐसे भी नहीं, मेन एग्जाम पे नंबर मत लाना, नंबर लाना, पर नॉलेज पे फोकस करो। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट दोगे, अपने आप एग्जाम पे अच्छा नंबर आ ही जाएगा। She is trying to say कि throughout the journey you should focus on the knowledge, you should enjoy the journey, not wasting your time thinking about the destination कि क्या होगा, मार्क्स कितना आएगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, वो सब में वक्त बर्बाद मत करो। जो जर्नी है, जो प्रोसीड्योर है, उसको एंजॉय करो और अकॉर्डिंगली काम करो। और रिया, कंसिस्टेंट रहना कितना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि आज मैंने 10 घंटा पढ़ लिया और इस सोच में अगले 3 दिन 2 घंटा करके पढ़ रखा है कि संडे को तो मैंने 10 घंटा पढ़ा था, मंडे को 2 घंटा पढ़ूंगा तो क्या ही हो जाएगा, ट्यूसडे को 4 घंटा पढ़ूंगा तो क्या ही हो जाएगा। तो ये लोग ये नहीं समझ पाते कि अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ अपने काम को लेके, डेली अगर मैं एक लेवल मेंटेन नहीं कर पाता हूँ, तो वो एंड मोमेंट पे, एंड पॉइंट पे कुछ रिजल्ट वक्त नहीं दे पाता है। सो बीइंग कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज, बीइंग कंसिस्टेंट इन द टेस्ट, हाउ मच इम्पोर्टेंट in the journey of this 2 year? अगर कंसिस्टेंसी की बात आते हैं तो आपको अभी मैं जैसे बोल रही हूँ, आप कुछ ही महीने हुए 11th पे हो, अगर मैं आपको अभी बोलूंगी, क्योंकि मैं मेरे 12th के लास्ट में 12 घंटे 14 घंटे पढ़ती थी, अगर आपको मैं बोलूंगी कि आप 12 आवर्स 14 आवर्स आप पढ़ाई करो, आपसे नहीं हो पाएगा, एकदम सच बात है। तो अब क्या करो, अभी से आपको मिनिमम 6 आवर्स यू हैव टू टेक फॉर योरसेल्फ। 6 आवर्स आपको खुद से पढ़ाई करने हैं। She is talking about the self पूरे, study. हाँ, Self सेल्फ स्टडी। ये जो हमारे excluding the teacher ट्यूशन times. यस, Tuition times. ट्यूशन टाइम्स बाद देकर पूरे हमारे 6 आवर्स मस्ट। आप 6 घंटे अभी पढ़ाई कर लो, मैं तो बोलूंगी 11th के मिड तक 6 घंटे पढ़ाई करो, बहुत अच्छा होगा। फिर आप 8 आवर्स कर लो, ठीक है, उससे आप 10 घंटे कर लो। 12th के फर्स्ट हाफ में जो 6 महीने होते हैं, आप 10 घंटे कर लो। नेक्स्ट 6 मंथ्स पे आप 12 घंटे 14 घंटे आराम से हो जाएगा, अपने आप से आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी पढ़ रही हूँ, 1 घंटे और ज्यादा हो जाएगा वही। और जो अब ऐसा हो रहा है ना कि सपोज मैं ऐसे बोलूंगी, क्योंकि मैं मेरी क्लॉक पे वो टाइमर लगा के पढ़ती थी कितने घंटे में पढ़ रही हूँ, ठीक है, मेरे वो रहता था। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है, आपके पास 10 मिनट है, पर आपके पास सपोज 2 पेजेस पढ़ना बाकी है, आप ऐसा मत करो कि ठीक है मेरे पास 10 मिनट है, मैं जल्दी 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 पढ़ लूंगी, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको 2 पेजेस कंप्लीट करके वहां से आप ऐसा नहीं है कि मेरे पास 10 मिनट है, ठीक है मैं वो 2 पेज बाद में पढ़ लूंगी या पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं है। आप जो लेकर बैठे हो वो कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। Exactly, and basically she is trying to say you to avoid the procrastination, क्योंकि जाने में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लोग चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं कि आज करूंगा या फिर कल कर लूंगी, परसों देखा जाएगा, एक हफ्ता में देख लूंगा, कर लेंगे। ये कर लेंगे जो चीज है, वो वो कभी कर नहीं लेंगे से कर लूंगा या फिर कर लूंगी तक जो जानी है, उसके बारे में रिया बोल रही है कि कर लेंगे नहीं, कर लूंगा, आज ही कर लूंगा, कर लूंगी, आज ही कर लूंगी। और कर लेंगे वो कभी नहीं कर पाते और कभी होता भी नहीं है। सो हाउ टू अवॉइड द प्रोक्रेस्टिनेशन, ये लोग भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो लोग सेशन को देख रहे होंगे 12 पे, वो लोग भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो प्रोक्रेस्टिनेशन का क्या बोलते हैं, डिजीज का जो शिकार है वो शिकार हो चुके होंगे। तो वो लोग कैसे अभी बैक करें? ओके, तो मैं और एक चीज में जो ऐड करना चाहूंगी, मुझे पता नहीं आप कितने घंटे सोते हो, अभी आप 11th में हो, 6 से 7 घंटे से ज्यादा आप नहीं सो सकते। एग्जैक्टली,
द थिंग इज दैट अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैंने तो बायोलॉजी में पढ़ी थी या पढ़ा था कि मुझे 8 से 9 घंटे तो सोना ही है, नेवर। ऑलवेज मुझे जो लगता है कि आप 11th एंड 12th ये 2 साल की जर्नी आप सब कुछ साइड में रख के ये 2 साल की जर्नी आपको करना पड़ेगा। ट्रू। पर ऐसा भी नहीं है कि मेरी जो तबीयत है उसको भी खराब करना है, ऐसा नहीं है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ 6 to 7 hours आप सो सकते हो। पर जब आप 12th में हो, अगर सेशन पे कोई 12th के बच्चा होंगे वो हमारे यूट्यूब पे, तो मैं उसको भी बोलना चाहूंगी कि 12th में हो तो कम कर लो 5 to 6 hours, पर 11th में हो 6 to 7 hours आप सो ही सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आप पूरे दिन, और अभी तो आप 11th में हो, स्कूल में ज्यादा प्रेशर नहीं है, ट्रू। तो स्कूल में ज्यादा प्रेशर नहीं है, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आप जाओ, बाकी पूरा जो ये दोपहर का टाइम है उसको आप पूरे प्रोडक्टिव सेशन के जैसे यूज करो। Utilize ऐसा करो। नहीं, हाँ ऐसा नहीं कि ठीक है हो जाएगा हो जाएगी, जो सर बोल रहे हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, वो उस दुनिया पे अगर आप रहोगे तो वो कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ऑल यू नीड टू डू इज, नहीं आज मुझे इतना से इतना करना ही होगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। पर उसके साथ मैं और एक चीज भी ऐड करना चाहूंगी, हमारे लाइफ में सी ये हम स्टूडेंट लाइफ है पूरा, तो उसमें आप मस्ती भी कीजिए, ऐसा नहीं कि मस्ती करना भी भूल जाओगे, मस्ती करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर मैं मस्ती थोड़ी, कितना भी आप कर लोगे मस्ती भाई, 1 महीने में 1 दिन घूमने चले जाओ कुछ नहीं होगा, True, 1 महीने true. में 1 दिन आप घूमने जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। अब अगर आप नहीं करोगे तो आपके पूरे ब्रेन को कभी भी रिलैक्स मोड पे नहीं ला सकते, आपको हमेशा लगेगा कि मुझे ये पढ़ना है वो पढ़ना है। एक दिन आप जा ही सकते हो कहीं पर भी घूमने। और जैसे सर बोल रहे थे कि टीचर्स डे पे, मुझे ऐसा लगता है कि ओके पूरे जो हमारे 2 साल की जर्नी है उसमें हम मतलब 2 ही दिन ऐसे होंगे जिसमें हम मजे कर सकते हैं सर के साथ, वो 2 दिन है टीचर्स डे, 11th के टीचर्स डे, 12th के टीचर्स डे। तो उसके लिए मैं प्रिपेयर करती थी क्योंकि उसमें मेरे माइंड रिलैक्स मोड में जाते थे। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये 2 साल में मस्ती नहीं छोड़नी है, ठीक है? आप मस्ती करो जो भी करो, पर पढ़ाई पे हमेशा फोकस रहो। वैसा में मत जाओ कि हो जाएगा हो जाएगी, वैसा नहीं है। अच्छे से पढ़ाई करो, सब कुछ एकदम ऑल राइट, वही Sure. मेरी है। एंड शी वाज आस्किंग मी अ क्वेश्चन कि मैं क्या केमिस्ट्री और फिजिक्स में हमेशा पूरे एनसीईआरटी पढ़ती हूँ कि नहीं। आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अपने पढ़ाई के पूरे मिड में पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पढ़ो। बायोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा ही नो मैटर व्हाट, पर केमिस्ट्री फिजिक्स आप नहीं पढ़ सकते हो हमेशा। पर मैं वो बोलूंगी आपको कि अगर आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स में दिक्कत आ रहे हैं कि ये नहीं हो रहा है, तो उस टॉपिक को आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एनसीईआरटी में कभी कभी वो लोग एकदम इजीली लिख देते हैं, पर कभी कभी अगर आप फिजिक्स की बात करते हो बहुत कम्प्लेक्स तरीके से लिखा हुआ रहता है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, मैं भी ऐसी करती थी, जब एनसीईआरटी पढ़ती थी सर को आकर पूछती थी कि सर इस लाइन पे मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप बोल दो इसको इजीली, तो सर मुझे वो इजीली ट्रांसलेट कर देते थे, ठीक है वही। पर एनसीईआरटी आई थिंक आपको केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों पढ़ना चाहिए, मुझे तो True, लगता है। true, true. And biology तो must है. बायोलॉजी मस्ट, लाइन बाय लाइन विद कॉन्सेप्ट्स। True. And how much important is to keep yourself far apart from all the distraction and social media usage. So it's a burning problem ना, जो लोग अभी देख रहे होंगे उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो किसी ना किसी एडिक्शन पे फंसे हुए, और इन लोगों में भी बहुत सारे बच्चे जो अभी कुछ ना कुछ एडिक्शन पे मतलब पड़ चुके हैं और उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मतलब देख लेता हूँ क्या ही हो जाएगा, 2 मिनट देख लूंगा, 5 मिनट देख लूंगी, थोड़ा इंस्टाग्राम के लिए रील बना लेता हूँ क्या ही हो जाएगा। तो उस चीज को कैसे कंट्रोल करें। एंड शी इज अ वेरी एक्टिव गर्ल एवरीवेयर इन एवरी एस्पेक्ट, सो शी कैन गाइड यू इन ऑल दिस एस्पेक्ट इन द बेस्ट वे पॉसिबल। क्योंकि रिया इज काइंड ऑफ ए गर्ल जो पढ़ाई भी कर लेती थी, गाने वगैरह भी कर लेती थी, डांस वगैरह भी कर लेती थी, एंड ग्रुपिंग फ्रेंड्स वगैरह जो ग्रुप के जो मतलब अड्डा वगैरह होते हैं ना, जो हम लोग 4-5 लोग बैठ गए अड्डा मार देते 2-3 घंटा चले गए, तो वो भी कर लेती थी। तो शी कैन गाइड यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल। सो हाउ टू बैलेंस ऑल दिस स्टफ्स।
ओके, सर ने जैसे बोला है कि मैं सब कुछ में एक्टिव थी, मैं एक्टिव थी, पर मैं उस चीज को मेरी एडिक्शन पे नहीं ट्रांसलेट किया, ठीक है। अगर आपको देखना है सबको, अभी आप इस एज पे हो, हम सब लोग टीनेजर्स, राइट, मैं भी एक टीनेजर ही हूँ, तो मुझे भी सोशल मीडिया का काफी लग चुका था, या अभी भी है बोल सकते हो, ठीक है। पर उसको मैं एडिक्शन पे ट्रांसफॉर्म नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अभी अभी जैसे मेरे पास पूरा वक्त ही वक्त है। अगर सर मुझे पूछ रहे थे कुछ देर पहले कि आप दोपहर को क्या करते हो, मैं सर खाती हूँ, सोती हूँ, फोन में देखती हूँ रील्स, और क्या करूंगी। तो वही चीज, आप 2 साल पे अगर आप पूरा खुद का मेहनत कर लेते हो, उसके बाद आप रील्स क्या कुछ भी देखो, आपको कोई भी कुछ देखो नहीं क्या बना भी लो। नो वन विल से एनीथिंग, ठीक है। पर इस जो जर्नी है उस पे आपको थोड़ा सा फोकस रहना पड़ेगा। आप किसी भी सोशल मीडिया को अपने एडिक्शन पे मत बना करें, ठीक है। आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है देखो मत, पूरे दिन पे रात में सोने के पहले ठीक है 1 घंटा मैं देख लूंगी, नो प्रॉब्लम, वो 1 घंटे मैं सिर्फ फोन के लिए ही रखूंगी। ऐसा नहीं कि उस 1 घंटे में मुझे पढ़ाई करना है, नहीं, उस 1 घंटे सिर्फ मी टाइम, एग्जैक्टली, ट्रू सिर्फ ट्रू। मी टाइम। मैं अपने खुद के जो पूरा दिन है उसका जो एंटरटेनमेंट है या फिर उसका जो फ्री टाइम है वो खुद को लिए मैं दे दूंगी। वो मेरा द टाइम विच इज ओनली डेडिकेटेड टू मी। तो वही तो, और बाकी जो टाइम है वो आप फोकस करो, क्योंकि देखो मुझे तो ऐसा फील होता था, मैं आती थी ट्यूशन में, मेरे सब ऑफलाइन ही था, मैं ऑनलाइन से कोचिंग नहीं ली थी। अन अकेडमी मेरे पास था, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एग्जाम के 2 महीने पहले आई यूज टू चेक कि वो लोग जो मतलब कर रहे हैं, वो लोग जो दे रहे हैं टॉपिक, वो आई हैव कंप्लीटेड और नॉट, वही सिर्फ। पर मेरी जो पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो भी था, सब कुछ ऑफलाइन, नथिंग वाज ऑनलाइन, ठीक है। तो उसके लिए मैं आती थी ट्यूशन पे, सबके साथ बात करती थी, सर लोगों के साथ, वो सर बोलते थे, गप्पे भी मार लेती थी। तो मुझे ऐसा लगता है ठीक है, मेरे दिन पे रिलैक्स मोड तो हो गए, अभी घर पे जाके मुझे फिर से पढ़ाई करना है। अगर मैं नहीं करूंगी पढ़ाई तो मेरा वो टॉपिक, ये टॉपिक छूट जाएगा। तब अब देखो कि आपके जो कंपिटिटर्स है वो कितने आगे है, कितने पीछे है आपसे। तब देख सकते हो ठीक है, वो ये टॉपिक अच्छे से पढ़ाई किया, मुझे ये टॉपिक नहीं आता था, या ठीक है, तो मैं वो फिर से पढ़ूंगी। बिकॉज यू नो व्हेन, जब आप टेस्ट देते हो तब आप तो देखते ही होंगे कि लिस्ट में कौन फर्स्ट आता है, कौन सेकंड आता है, कौन थर्ड आता है। तो उस बेसिस से आप बोल सकते हो कि वो मुझसे 10 नंबर ही ज्यादा लिया है, किसी ना किसी चीज में तो 10 नंबर ज्यादा लिया है, मुझे 10 नंबर ज्यादा लाने के लिए मुझे थोड़ी देर और मेहनत करनी पड़ेगी। That is the thing. तो उस टाइम पे आप, मैं बोलूंगी फोन नहीं चलाओ तो अच्छा होगा, पर ऐसा भी नहीं कि पूरे दिन पे भी नहीं चलाओ। रात के सोने से पहले 1 घंटे, या दोपहर पे 1 घंटे, दिन में 2 घंटे बहुत इनफ like I said, you have to balance everything. You have to make a schedule which will balance out everything. है। सब होना चाहिए, कुछ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सब एक परफेक्ट मिक्सचर पे होना चाहिए विथ परफेक्ट कॉम्पोजिशन। और वो कितना मायने रखता है कि जब तुम कंसिस्टेंट रहते हो तब भी बहुत मेहनत करते हो, टेस्ट पे फिर भी तुम्हारा एक मार्क्स एक रेंज पे अटक चुका है, उससे बढ़ नहीं रहा है, तब डिमोटिवेट फील होता है। 12 पे ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो हम लोगों का सेशन देख रहे होंगे अभी, वो ना एक लेवल पे जाके अटक गए हैं, समझ नहीं पा रहे कि मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, सर जो बोल रहे हैं वो भी सुन रहा हूँ, पर मार्क्स नहीं बढ़ रहे उससे। तो उस मोमेंट से कैसे फाइट बैक करना होता है, ये तुम्हारे साथ भी हुआ था। हाँ, 12 पे मिड पे। हाँ, 12th में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जो मैं नंबर लाती थी, सपोज 500, वो 500 में अटक रहा है, लाइक 500, 498, 510, उससे उस रेंज से ज्यादा नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको फोकस रहना है, ठीक है, आप मेहनत तो कर रहे हो, आप कॉन्सिस्टेंट भी हो, आप पढ़ रहे हो, 8 घंटे 10 घंटे आप पढ़ रहे हो। द थिंग इज, आप कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ रहे हो, वो बहुत मायने रखता है। अगर जो टॉपिक आप हम तो पूरे दिन पढ़ते हैं, सपोज हमने 1 to 12, मैं तो 1 to 12 भी पढ़ रही हूँ 2 दिन तक, पर 12 to 24 भी तो मुझे पढ़ना है। वो आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाओ कि मुझे वो ज्यादा पढ़ना है, उस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है। जब आप टेस्ट देते हो तब आपको तो फील होगा ना कि इस टॉपिक में मैं वीक हूँ,
इस टॉपिक मुझसे नहीं हो रहा है या ये टॉपिक छूट गया था, तो उस टॉपिक को आप पढ़ो तो ही आपका रेंज ऊपर जाएगा। जो टॉपिक्स आपको, क्योंकि टेस्ट देने पे आपको समझ में आएगा कि ये टॉपिक नहीं हो रहा है। हियर कम्स इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा आप कौन सी जगह पर वीक हो। ट्रू तो ट्रू। तब आपको उस टॉपिक्स को ही पढ़ना है कि मैं उस टॉपिक में कमजोर हूँ, उस टॉपिक को ही पढ़ना है। और टेस्ट देने के बाद और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिस्टेक एनालिसिस, जो अगले टेस्ट पे मुझे रेक्टिफाई करना है। मैंने देख लिया ये चीज मुझे गलतियां हो रखा है, वो मुझे नेक्स्ट टेस्ट के पहले ठीक करना पड़ेगा, एंड आई हैव टू मेक श्योर दैट आई एम नॉट रिपीटिंग दिस अगेन। सो उसके बारे में थोड़ा बता दो इन लोगों को, स्पेशली जो लोग 12 पे हैं। ओके, स्पेशली जो लोग 12th में और आप लोग जो 11th में हो, जब आप एग्जाम देते हो, सर सपोज एक दिन पे या 2 दिन पे या उस दिन ही आंसर की दे देते हैं, आप उसके साथ मैच कर लो फटाफटी। नहीं मेरे पास तो टाइम है, मैं मैच नहीं करूंगी या करूंगा, जो आएगा रिजल्ट में दिखा जाएगा, ऐसा नहीं। आप मैच करो। मैच करने के बाद देखो व्हाट आई वाज थिंकिंग इन द एग्जाम हॉल एंड व्हाट इज द एक्चुअल रिजल्ट। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं जब टेस्ट देती थी तब मुझे तो ऐसा लगता है कि नहीं यही करेक्ट आंसर होगा, जब रिजल्ट आता नहीं ये करेक्ट आंसर नहीं है, तो मैं कौन सी बेसिस पे सोच रही थी, क्योंकि हो सकता है उस बेसिस पे और एक क्वेश्चन आ जाए। ट्रू ट्रू। ठीक है, तो उस बेसिस पे और एक क्वेश्चन आ जाए और वो भी मेरे से गलती हो जाए, वैसा नहीं हो, इसलिए आपको घर पे जाकर वो एनालिसिस करना पड़ेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर ने तो क्लास में ये टॉपिक नहीं कराया फिर भी सर ने एग्जाम में दे दिया, ठीक है, तो आप सर को बोलो कि सर क्लास में आप ये टॉपिक फिर से आप करवा दो, ठीक, क्योंकि उसी से तो क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, और ऐसा भी नहीं कि जब मैं 11th में थी मुझे बहुत फील होता था कि ये टॉपिक तो एनसीईआरटी पे नहीं है, ये टॉपिक तो मेरे समझ से बहुत ऊपर है, तो मैं ये क्यों करूं, ये नहीं करूंगी, ये बाद में करूंगी। ऐसा मत करो, क्योंकि जो मैंने मेरे 2025 के नीट पेपर से सीखी हूँ ना, वो मैं बोल रही हूँ। 2026 2027 का क्वेश्चन और भी हार्ड होने वाला है, और भी हार्ड होने वाला है। तो वैसा नहीं कि वो लोग, मैं बार बार बोली कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, क्या बुक में क्या नहीं वो तो बाद में, पर कॉन्सेप्ट जो क्लास में पढ़ाया गया है या जो टेस्ट में दिए गए हैं उस कॉन्सेप्ट्स को बार बार पढ़ो। एग्जैक्ट। और अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आते हैं, सर है और आपके जो फिजिक्स बायोलॉजी का रेस्पेक्टिव टीचर्स है, आप उनसे भी पूछिए कि सर मैंने एक टेस्ट दिए थे उसमें इस टॉपिक्स मुझे समझ में नहीं आए और इस टॉपिक आपने क्लास में नहीं करवाए, मुझे ये प्लीज मुझे दिखा दो। करवा दो। एग्जैक्टली। एंड जो लोग अभी 12 पे है उन लोगों का और एक दिक्कत वाली चीज से वो लोग गुजर रहे हैं कि क्लास 11 का बैकलॉग हो रखा है और क्लास 12 पैरेलली करना पड़ रहा है। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्लास 11 का बैकलॉग कैसे कवर करें, और इन लोगों को भी समझना चाहिए कि 11 बैकलॉग ना करे वो कितना इंपॉर्टेंट है। सो तुम्हारा भी 11 पे फिजिक्स का बैकलॉग था, केमिस्ट्री पे कुछ बैकलॉग था, तो वो चीज कैसे ठीक करे और वो चीज को कैसे ट्रैक पे लाए। तो ओके, तो जो लोग लाइक बैकलॉग्स ले रखे हैं, मतलब बैकलॉग हो गए हैं 12th में जो लोग हैं, और आप लोग बैकलॉग ना करिए, इसलिए आप लोगों को तो मैं बोल दी कि 11th का सिलेबस 11th में कंप्लीट करना पड़ेगा। और 12th में जिन लोगों का बैकलॉग हो गया है तो मैं बोलूंगी अक्टूबर या नवंबर तक बैकलॉग्स क्लियर होना चाहिए। क्योंकि नवंबर दिसंबर जनवरी तो पूरा ही वो टेस्ट वगैरह देने में प्रैक्टिकल 12th के प्रैक्टिकल से ही चला जाएगा, बोर्ड का एग्जाम है, हाँ वही सब कुछ। सो नवंबर से पहले लाइक अक्टूबर या बोलो अक्टूबर के मिड पे आपको पूरा बैकलॉग क्लियर होना पड़ेगा। और आप लोग बैकलॉग ना करो, हाँ, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि 12 पे जाने के बाद बैकलॉग कवर करना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे, आपके एक बोर्ड का प्रेशर हमेशा फील होता रहेगा, बोर्ड एग्जाम आ गए, बोर्ड एग्जाम आ गए। और 12th में अगर आप जाओगे तो 12th में तो प्रैक्टिकल मस्ट अटेंड करना ही पड़ेगा, तो प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। तो इसलिए आप 11th का सिलेबस 11th में ही कंप्लीट कर दो। हो सकता है बहुत लोग का ही होता है, लाइक 90% ऑफ द स्टूडेंट्स का तो बैकलॉग्स होते ही है, पर ट्राई करो कि कम से कम बैकलॉग्स हो। रिया का भी हो गया था, पर मेरी तो बहुत फिजिक्स में बहुत सारा हो गया था। फिर 12 पे जाके बहुत मेहनत करना पड़ा, और हमेशा ये जो मेहनत है वो हर स्टूडेंट पुट नहीं कर पाते, इसलिए बहुत डिजर्विंग स्टूडेंट का रिजल्ट खराब हो जाता है। 2025 पे भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जो लोग बहुत अच्छा चीज़ें डिजर्व करते थे, बहुत अच्छा रिजल्ट डिजर्व करते थे, पर बैकलॉग के वजह से क्लास 11 के जो मिस्टेक थे वो कवर नहीं कर पाए कभी, और
फाइनल रिजल्ट पे वही रिफ्लेक्ट किया, और फाइनल रिजल्ट पे वही चीज़ जो बैकलॉग है वो फिर से बैकलॉग बन के आया और रिजल्ट खराब हो गया। तो जैसे कि रिया के बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो लोग बहुत डिजर्विंग थे, पर 11 के मिस्टेक की वजह से कॉम्पिटिशन से आउट हो गए। नाउ इफ़ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी, हमने हर चीज़ तो डिस्कस कर लिया है, फिर भी कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरी है, इफ़ यू वांट टू नो हर नो एनीथिंग फ्रॉम हर, because कुछ भी as I said, she is one of the student who has secured very good percentile in both PCM and PCB, so she can guide you in the best way possible. So you can ask her anything which is coming in your mind, and anything doubts you are facing in your life, anything. क्या पूछे थे फिर बता। अलग अलग सब्जेक्ट पे टाइम कैसे मैनेज हाँ, करती थी। ठीक ओके, ये पूरा आपका पर्सनल है, ठीक है, कि आप कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा वीक हो। सपोज मैं फिजिक्स में वीक थी, तो अगर मैं बोल रही हूँ, सपोज मैं 12th की बात करती हूँ, 12th में मैंने 10 घंटे से 12 घंटे मीट पे पढ़ रही थी। तो अगर 10 घंटे से 12 घंटे में पढ़ रही थी और मुझे ऐसा हुआ कि फिजिक्स मेरा बहुत वीक है, तो उसको मैं ज्यादा टाइम नहीं, सपोज 10 घंटे पे हाफ ऑफ द टाइम 5 घंटे में फिजिक्स को ही देती थी, और बाकी जो मेरे रहता था वो मैं 2.5 या 2.5 डिपेंडिंग ऑन माय नीड्स, मुझे क्या चाहिए। कभी भी ऐसा होता था कि मुझे केमिस्ट्री बहुत ज्यादा पढ़ना है, तब मैं क्या करती थी, केमिस्ट्री का टाइम बढ़ा लेती थी। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर नीड। और अगर आपको ऐसा हो कि पूरा ही आपका सब कुछ सेम सेम चल रहा है, किसी भी सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग नहीं हो ज्यादा, किसी भी सब्जेक्ट में वीक भी नहीं हो ज्यादा, तब आप क्या करोगे, हर एक सब्जेक्ट को डिफरेंट, मतलब पूरा एकदम डिविजन कर लो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। जैसे अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो अभी, तो आप 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे पढ़ लो। सपोज 6 घंटे पढ़ लो, तो सुबह 2 घंटे सपोज आप केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ रहे हो, दोपहर के 2 घंटे बायोलॉजी फिजिक्स करो, रात के 2 घंटे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री करो। बट मैं एक चीज मैं आपको बताऊंगी, वो भी मैंने मेरे सीनियर से सीखी थी, शोरोदीप दादा करके हमारे he is one of my first student who is studying in AGMC right now, not studying, he is doing Pass out. internship. सो दादा ने मुझे एक बात बताया था कि जब आपको ऐसा लगता है पढ़ाई खत्म, पूरे दिन का पढ़ाई खत्म, रात के सोने से पहले जो भी आपने पढ़ाई किया है वो रिवाइज करो, ठीक है। फिर सुबह जब आप उठ रहे हो, पिछले दिन आपने क्या क्या पढ़ाई किए थे वो आप एक रिविजन टाइम, सब कुछ तो आप फिर से पढ़ नहीं सकते हो, रिविजन टाइम। और मैं क्या करती थी, मैं मेरे जो वाल पे मैं वो स्टिकी नोट्स चिपका के रखती थी, मुझे आज ये से ये पढ़ना है, आज ये तो पढ़ना ही है, और मैं पढ़ लेती थी, तब मैं टिक कर देती थी, ये हो गया ये हो गया। अगर आप स्टिकी नोट्स नहीं यूज करो, डायरी पे आप मेंटेन रखो कि मैं आज ये सब कुछ पढ़ रही हूँ, दैट्स द थिंग। वैसे आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, अगर आप ज्यादा वीक भी नहीं हो स्ट्रांग भी नहीं हो, अगर आपका किसी सब्जेक्ट वीक हो रखा है तो उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दे दो। एंड जैसे कि रिया आज तुम लोगों के क्लास पे आए हैं, ऐसे ही शोरोदीप इन लोगों के क्लास पे आए थे। शोरोदीप इज वन ऑफ द टॉपर। फर्स्ट मैं जिस दिन सर ने हमको सिर्फ ऐसे ही बुलाया था, जस्ट शोरोदीप दादा से बात करने के लिए, तब हमारा कुछ क्लास भी नहीं हुआ था, आई स्टिल रिमेम्बर। तो उस दिन शोरोदीप दादा आए थे हमसे बात करने के लिए। एग्जैक्टली, आज जैसे रिया आई है, सो उस सेशन के बारे में रिया आज बोल रही है, तो सोचो एक सेशन से तुम क्या कुछ सीख सकते हो और अपनी जिंदगी में एम्पलीफाई कर सकते हो, और वो तुम्हारे लाइफ पे, तुम्हारे रिजल्ट पे कैसे इम्पेक्ट कर जाते हैं, जो तुम अपने सक्सेस स्टोरी पे बता सकते हो, जैसे रिया आज बोल रही है। सो एनीवन हैविंग एनी अदर क्वेश्चन? या how to manage PCMB together? Yeah, she is quite good in maths as well. So what's the thing that you are dedicated to, medical or engineering, like PCM or PCB, the most dedicated you are? कौन से सब्जेक्ट पे हो? PCM पे ज्यादा डेडिकेटेड हो, so I will tell मैथ्स ज्यादा प्रैक्टिस करो rather than बायोलॉजी इफ यू आर मोर डेडिकेटेड टू PCM, क्योंकि मैं ज्यादा PCB में डेडिकेटेड थी, इसलिए मैं मैथ्स करती थी। ऐसा नहीं मैं पूरे RS अग्रवाल के जितना भी क्वेश्चन था मैं सब कुछ, मैं ना इसको हमेशा बोलती थी कि अगर तुम बायो का स्टूडेंट हो तो इतना मैथ क्यों करती हो, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन मैथ्स। सो शी यूज्ड टू टेल मी, सर मुझे अच्छा लगता है। मैं हमेशा बोलती थी, अरे भाई अच्छा लगता है क्या होता है, तुम बायो का स्टूडेंट हो, बायो पे टाइम इन्वेस्ट करो, मैथ्स क्यों कर रही हो। फिर इसका जो मैथ्स का टीचर था
वो भी रिया को बहुत प्यार करती थी और गाइड करती थी हमेशा, सर बहुत चाहते अच्छे। थे कि मैं इंजीनियरिंग पे जाऊं। हाँ एग्जैक्टली। और मैं ना हमेशा बोलती थी कि मैथ्स पे इतना टाइम मत इन्वेस्ट करो। सो फिर भी लास्ट मोमेंट पे रिया ने बायोलॉजी पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट हाँ, किया। मैं 12th में लास्ट में जो 6 मंथ्स थी तब मैं बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस की, क्योंकि मुझे पता था मुझे मेडिकल पे ही जाना है। तो दैट्स हाउ, अगर आपको लग रहा है कि आपको पीसीएम ज्यादा फोकस करना है तो आप मैथ्स ज्यादा प्रैक्टिस करो रेदर देन बायोलॉजी। बायोलॉजी भी आप पढ़ लो, अगर आप पीसीएम भी हो तो आप सपोज आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, बायोलॉजी को 1 घंटे दे दो दिन पे, या 2 घंटे दे दो, मैथ्स को ज्यादा टाइम दो। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट जब जोसा का चॉइस फिलिंग हो रखा था, मतलब जब हो रहा था, तब रिया ने मुझे कॉल किया कि सर आज तो जोसा का चॉइस फिलिंग होगा, मैं किस सीक्वेंस पे कॉलेज को प्रायोरिटाइज करूं। मैंने बोला ये तो इंजीनियरिंग के लिए, तुम एनआईटी का चॉइस फिलिंग क्यों करोगे, तुम्हें तो मेडिकल मिल जाएगा अच्छा। ये मुझे बोल रही थी, नहीं सर मुझे अगर अच्छा एनआईटी बाहर का मिल जाता है तो मैं इंजीनियरिंग कर लूंगी। व्हाट द हेक। मैंने बोला नहीं ये नहीं करना है, बायो पे जाना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है। सो मेरी तो मॉक सीट जब आया था मुझे एनआईटी नागपुर भी शो किया था, तो फिर भी सब लोग मिलके फिर डिसाइड किया नहीं मुझे मेडिकल पे जाना है, क्योंकि मुझे बायोलॉजी बहुत अच्छा लगता है। रेदर देन मैं तो सोच रही थी मुझे अगर मैं इंजीनियरिंग लाइन पे जाऊंगी मुझे ज्यादा फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, मैं अगर बायोलॉजी लाइन पे जाऊंगी तो थोड़ा कम फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, इसलिए नहीं मैं मेडिकल पे ही जाऊंगी। अभी जब रिया मेरे साथ बैठी थी उस रूम पे, तब मुझे बोल रही थी कि सर मुझे मेडिकल पे स्पेशली इसीलिए जाना है क्योंकि उस पे फिजिक्स नहीं है। सो दैट्स द इम्पोर्टेंस कि यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ बैकलॉग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इन a particular subject. So I think it was helpful to you and you have learned a lot from her. So you can text her in social profile also. She will definitely guide you if she is having enough time. So फालतू की चीजें नहीं। अगर कुछ काम की पूछना है so she can be a very good mentor कम सीनियर, जिससे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, नॉट ओनली अबाउट द स्टडीज, नॉट ओनली अबाउट द प्रिपरेशन, बट रिगार्डिंग द लाइफ एज वेल। सर जैसे बोल रहे सोशल मीडिया पे, वैसे शोरोदीप दादा भी आए थे तो मैं शोरोदीप दादा का भी इंस्टाग्राम हैंडल लेके गई थी। और फिर जब हमारा 12th के वो बोर्ड एग्जाम के कुछ दिन पहले जब मैं शोरोदीप दादा को मैसेज करती थी, दादा मुझे ये नहीं आ रहा है, ये कैसे करूँ, द सेम थिंग यू कैन डू एज वेल, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं हेल्प करूंगी। ये ना मैं हर सेशन पे नहीं बोलता हूँ, ये मैं कुछ कुछ सेशन पे ही बोलता हूँ। जो टॉपर बहुत एनर्जेटिक होते हैं, लाइफ को लेके बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, जो सिर्फ पढ़ाई को लेके नहीं हर चीज का एक ओवरऑल आइडिया रखते हैं, लाइफ को जीते कैसे वो पता होता है, उन लोगों के सेशन पे मैं बोलता हूँ, एंड रिया इज वन ऑफ देम। सो आई वुड एक्सपेक्ट अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रिया। थैंक यू। And I can assure you, a very few topper you will meet in your whole life like Riya, that much energetic, that much fluent, and that much visionary. At the same time, that much studious as well. So, thanks Riya for coming. Thank you, sir. And very soon we will have our success party, Alpha Day, where we will call all the achievers in both PCM and PCB, and as well as from board, where we will celebrate the success of this year in a very grand place. So you have to come in that as one of the special guests. Sure. And since your success is my very personal to me, and you are our own Riya, so you have to come and you have to enjoy the thing like you always to do. So thanks again. So this is a very small token of love for you. So Thank you, sir. from all the members of Alpha, so thanks for coming again. And वो जो सक्सेस पार्टी है, जो अल्फा डे, उस पे आना है और बहुत मजा करना है, जो तुम हमेशा करते रही हो। तो thanks again, and I would expect another huge round of applause for her. चलो, thank you.